Minitab was the last software which we looked into at the last time in the last lecture, and today we start with confidence intervals and tests of significance. So basically, for any research, why do we do a research? For example, suppose we have created, for example, take the case of corona. So in corona, there was something which was known as plasma therapy. Plasma therapy. What is plasma therapy? Plasma contains antibodies against corona, and these antibodies destroy the coronavirus. Okay, these antibodies destroy the coronavirus. So it was thought of that if we take antibody rich plasma, because we will not be able to separate out antibodies from the blood, एक एक एंटीबॉडी हम पिकअप करके अलग नहीं कर सकते, बट वी नो दैट plasma is something which is rich in all types of antibodies. So if a person who has suffered from corona gets well, that means the plasma has antibodies against corona. So when those antibodies will act on coronavirus, वो एक पेशेंट पे भी एक्ट करेंगे, और उस पेशेंट की एंटीबॉडी अगर हम दूसरे पेशेंट में डाल देंगे तो उस पेशेंट के कोरोना वायरस में भी एक्ट करेंगे, बिकॉज उनका तो एक ही काम है कोरोना वायरस से लड़ना. तो उनको ये थोड़ी लेना देना है कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई चल रही है या पानीपत में लड़ाई चल रही है. So those antibodies, when transferred from one patient to another, should function on coronavirus for the next patient also. तो इसीलिए there was a thought that this plasma therapy may work in corona, but for working या may work, आप ऐसे ही निकाल के किसी को तो डाल नहीं सकते. So you should have a statistical evidence, you should have a research evidence that this antibody will work in corona or the corona of another person. तो ये जितने कॉन्फिडेंस इज व्हाट, कॉन्फिडेंस इज योर फैक्ट्स एंड फिगर्स. व्हाट मुझे मन में लग रहा था कि ये मुझे मतलब जो साइंटिस्ट है उसको कि ये एंटीबॉडी दूसरे के शरीर में भी काम कर सकेगी. बट व्हाट इज दैट? दैट इज नॉट कॉन्फिडेंस, दैट इज अ गट फीलिंग. दैट इज अ गट फीलिंग, अंदर से लगना. मुझे अंदर से लगता है कि तू बड़ा होके कुछ करेगा. तो दैट अंदर से लगना इज गट फीलिंग. बट कॉन्फिडेंस, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस, you should have figures. So creating confidence is one of the major functions of statistics. कि भाई आंकड़े ये बोलते हैं, मेरा तो छोड़ दो, मुझे क्या लगता है वो छोड़ दो, आंकड़े ये बोलते हैं. तो दैट confidence is generated by a statistical experiment or an experiment by which statistics is derived, या फिर the figures which are derived from the experiment. तो आंकड़े क्या बोलते हैं? आंकड़े आपको कॉन्फिडेंस देते हैं. तो देर इज वन थिंग, दैट थिंग्स इन नेचर आर नेवर परफेक्ट, वी ऑल नो दैट. ठीक है, परफेक्ट नहीं है, इसीलिए हाउ वी गेट द बेल कर्व. हमको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आता है ताकि कुछ लोग जो हैं या कुछ चीजें जो हैं वो आउटलायर्स होंगी, वो मीन से बहुत दूर होंगी, और कुछ चीजें हैं जो मीन के आसपास होंगी. तो things in nature are never perfect. There is always a Bell's curve. Existence and occurrence are controlled. Controlled by whom? Controlled by nature. So confidence is needed for a statement कि हम जिस चीज को, हमारी जो gut feeling है, that should lie near the mean. It should not be an outlier. हमको जो लगता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में होना चाहिए. It should not be an outlier. So this confidence is derived from statistics. So there are two ways of deriving confidence. One is the confidence interval and one is the test of significance. When there is one variable, you will use confidence interval. For example, the number of patients getting out from corona is what you can define from the confidence interval, because there is only one variable.
But if you remember, I had shown you a chart last time. Let me see if we get it again. So this is the chart in which I have told you there are two variables. One is the lipid, one is the blood pressure. So ये chart में we cannot have a confidence interval because there are two variables. So when there are two variables, we define it by the test of significance. Test of significance. I had explained you that time also that यहाँ पर जो अगर हमने येलो ब्लू लाइन जो है वो अगर we take the blue line as the lipids whereas we take the red line as the blood pressure. तो as lipids increase whether blood pressure increases. तो यहाँ अगर देखेंगे तो lipids have increased, यहाँ भी blood pressure increase हुआ है. यहाँ पर lipids have increased, यहाँ पर blood pressure increase हुआ है. यहाँ पर lipids have increased, यहाँ पर blood pressure increase हुआ है. But there are places where the blood pressure has not increased, sorry, lipids have not increased, but still the blood pressure has increased. See, this is when we are taking the same timeline. This is the same timeline. This is the timeline. तो ये timeline में lipids have not increased, but the blood pressure has increased. So whether these two things are correlated and correlated significantly, that we are going to learn in the test of significance. जितना हम इस चीज में ज्यादा जाते जाएंगे, मतलब मीन मोड मीडियन वगैरह बहुत ही इजी था, ये सब चीज में जितना ज्यादा जाते जाएंगे उतना चीजें ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी. इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, kindly ask. I will try my level best, though I have told you that this is the first time I am teaching you medical statistics, but I'll try my level best to explain you. So when you have one variable, you use confidence interval. When you have more than one variable, you use the test of significance. So there are two ways of gaining confidence from a part of data. One is confidence interval, one is the test of significance. So let us see what is confidence interval. Confidence interval is nothing but the standard deviation. Confidence interval is nothing but the standard deviation. So for example, लेट अस टेक कि आपके मोती बनाने की फैक्ट्री है. अगर आपको पता है मोती बनाने की फैक्ट्री, प्लास्टिक वाले नहीं, सच वाले, हैदराबाद में बहुत चलते हैं मोती बनाने वाली फैक्ट्रियां. तो वो क्या करते हैं, वो सीप है, जो सीप मतलब जो ऑयस्टर है, उस ऑयस्टर को पकड़ के लाते हैं, उनको खोलते हैं, उनमें एक छोटा सा दाना प्लास्टिक का या पत्थर का डाल देते हैं, फिर उसको बंद करके रख देते हैं. फिर 6 महीने बाद उनको वापस से खोलते हैं और अंदर मोती बना हुआ रहता है. तो ये 6 महीने में मोती बनने की जो प्रक्रिया है वो सब ऑयस्टर, और एक बार आपने ऑयस्टर खोल दिया तो फिर आपको जो साइज का मोती है वो साइज का मोती लेना पड़ता है. फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं इसको थोड़ा देर और, मतलब जैसे हम कुकर में या इसमें और करते हैं ना कि अरे अभी तक चावल पका नहीं है, थोड़ी देर और रखते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते. यू हैव टू हैव अ फिक्स टाइमिंग. सो यूजुअली इट इज 6 मंथ्स. तो 6 महीने में वो मोती खोल के, मतलब ऑयस्टर खोल के मोती निकाल लेते हैं. तो कोई मोती जो होता है वो पर्टिकुलर ग्राम का होता है, कोई मोती होता है वो पर्टिकुलर ग्राम का होता है. तो दिस इज सपोज टू बी अ ग्राफ जिसमें 6 महीने के बाद ऑयस्टर खोलने के बाद कितने ग्राम के मोती निकले. तो अगर यहां देखें तो सबसे ज्यादा ग्राम वाला मोती जो है वो 400 ग्राम वाला है, या 40 ग्राम वाला है, पकड़ो 40 ग्राम. 400 ग्राम का मोती तो होता नहीं है, 40 ग्राम का मोती है बड़ा वाला. ठीक है. उसके बाद 30 ग्राम का मोती, 20 ग्राम का मोती, 10 ग्राम का मोती, और मोती निकला ही नहीं. तो अगर ये ग्राफ आप देखोगे तो यहां पर हियर व्हाट यू आर,
इज कितने ग्राम के, अभी जैसे ये 40 ग्राम है तो हमारे पास समझो 1000 ऑयस्टर्स है, तो इस 1000 ऑयस्टर में सबसे ज्यादा ऑयस्टर जो निकले, समझो यहां पर वी हैव 300 ऑयस्टर्स ऑफ 4 ग्राम। उसके बाद वी हैव 200 ऑयस्टर्स ऑफ 30 ग्राम्स एंड 200 ऑयस्टर्स ऑफ, यहां पर ये साइड 30 ग्राम्स। तो दिस इज समथिंग विच इज, ये पूरे इसमें वी हैव डिवाइडेड द 1000 ऑयस्टर्स विच वी हैव, एंड दिस इज ओल्ड डेटा। ओल्ड डेटा मतलब जो ऑयस्टर्स हम पिछले 6 महीने में खोल चुके उसका डेटा है। तो वी हैव ड्रॉन अ ग्राफ कि 6 महीने में हमको कितने ऑयस्टर मिले। सो इफ यू सी, मेजॉरिटी ऑफ द ऑयस्टर्स आर फ्रॉम this area to this area, majority, sorry, not here, majority of the oysters are from here, this area to this area। तो इसका मतलब हमारे जो मेजॉरिटी ऑयस्टर्स हैं दे कम फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। तो 25 ग्राम से लेके 40 ग्राम तक के ऑयस्टर्स हमारे मैक्सिमम है। मैक्सिमम ऑयस्टर्स आर फ्रॉम the 25 gram to 40 gram area। Okay, so now we take a standard deviation. This is the first standard deviation, this is the second standard deviation, this is the third standard deviation। वैसे ही पॉजिटिव साइड पे दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, समझो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 15 ग्राम है, या 15 ग्राम नहीं 7 ग्राम है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। 7 grams is our standard deviation। That means from 40 grams to here will be 33 grams, here will be 47 grams। So most of our oysters are between 33 to 47। कितने, if you see 68.2% ऑफ द डेटा, मैंने ये स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम पे भी बताया था कि 68.2% ऑफ द डेटा और 68.2% ऑफ द ऑयस्टर्स will be between one standard deviation, that means they will fall between 33 grams to 47 grams। फिर दो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 14, 14, so 40 minus 14 is 26, यहाँ 26 आया, और 40 minus 40 plus 14 is 54। तो 95.4% of the oysters we harvest will fall between 26 and 54, एंड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 26 से 7 और कम कर दिए हमने, तो that will be 19, so this is 19, and 54 से 7 और बढ़ा दिए, so that is 61। तो 99.98% of the oysters will be between 19 and 61। So this is what is known as the confidence interval। अगर we will try to look into this also example also, इसी पर्ल्स का एग्जाम्पल लेंगे, तो सिंपल सा चीज है कि अगर हम उसमें से 1000 ऑयस्टर निकालते हैं या लाख ऑयस्टर निकालते हैं, तो 19 से 61 हमारा 99980 इतने जो ऑयस्टर्स हैं, ये मिनिमम 19 होंगे, मैक्सिमम 61 होंगे। बाकी जो बचे हुए 20 ऑयस्टर हैं 1 लाख में से, वो 19 के नीचे होंगे या 61 के ऊपर। So these are outliers, So this is what is confidence interval।
वी विल ट्राई टू, समझा नहीं होगा, वी विल ट्राई टू get it in this also. So suppose you have a pearl farm, you have old data of pearls. आपके पास पुराने 1 लाख जितने भी आपने 10 बार ये निकाले थे, हजार हजार निकाले थे, उसका डेटा है। तो उस डेटा को आपने एक ग्राफ में डाल दिया। तो अब आने वाले जो मतलब नया बैच जो आपने लगाया है ऑयस्टर्स का, या नया बैच जो पर्ल का लगाया है, उसका वेट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या आप उसका वेट प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या चांसेस है कि आपको किसी ने ऑर्डर दे दी कि मुझे 65 ग्राम का पर्ल चाहिए, 65 ग्राम का मुझे मोती चाहिए? तो व्हाट इज द कॉन्फिडेंस यू हैव दैट यू विल गेट अ 65 ग्राम का पर्ल? तो 65 ग्राम का पर्ल मिलने के लिए व्हेन यू हैव 100 पर्ल्स, अगर आपने 100 पर्ल खोल लिए, ठीक है, तो उसमें 99.98 मतलब इट इज नॉट अ कंप्लीट फिगर। अगर आपने 1000 पर्ल खोल लिए तो 999.8, और अगर आपने लाख पर्ल खोल लिए तो 9998, मतलब लाख पर्ल में आपको, या 10,000 पर्ल में आपको 2 पर्ल ऐसे मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, हाँ, कि जो 65 ग्राम्स के हैं, बिकॉज उस समय पे 9998 come into the 19 to 61 criteria, whereas 2 pearls which remain out of the 1000 will come in the outliers criteria. तो यू कैन से विथ कॉन्फिडेंस दैट सर अगर मैं 1000 पर्ल खोलूंगा तो उसमें से 1 या 2 पर्ल मुझे 65 के मिल सकते हैं। अगर मैं लाख पर्ल्स खोलूंगा तो उसमें से 10 या 20 क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 20 जो है उसको डिवाइड करना है। कुछ चीजें 19 से कम भी होंगी ना, कुछ चीजें 19 से कम भी होंगी, कुछ चीजें 1961 से ज्यादा होंगी। तो 10 पर्ल्स में चांस है कि आपको 65 का पर्ल मिले। सो दिस डेटा गिव्स यू कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग टू somebody. This data gives you confidence of speaking with somebody कि what is your confidence that कितने चीजें खोलने के बाद आपको, कितनी चीजें खोलने के बाद आपको 65 ग्राम का पर्ल मिल सकता है। सो लेट अस गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। इसी में देखो what is the confidence interval? Confidence interval is nothing but the number of standard deviations on both sides. So 68% your confidence is 68% when you go one standard deviation to each side. So sorry, one standard deviation to each side when you go, you get, ये क्यों नहीं आ रहा? ओके, मैंने एनोटेट किया है इसलिए। सो व्हेन यू गो वन स्टैंडर्ड डेविएशन टू ईच साइड, so this place from year to year you get 68.2% confidence. When you go 2 standard deviation you get 95.4, and when you get 3 standard deviations you get 99.8% confidence interval. अब यहाँ पर we agree to it that there will be 5% deviation here and there. There will be 5% deviation here and there in nature. So that is why when we are doing statistical research, we usually take 2 confidence intervals. That means 2 standard deviations to the left of the mean and 2 standard deviation to the right of the mean, so that we get a 95.4% confidence interval. So what हमारा 95% लोगों में अगर दवाई हमारी चल रही है तो वी आर मोर कॉन्फिडेंट दैट ये दवाई चल रही है एक्चुअली। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस इंटरवल इज टेकन 2 standard deviations from each side. So you can predict to some extent depending upon the variable value and the Z score of the data. What is the Z score? The Z score is the number of standard deviations
you have to go, the number of standard deviations you have to go for getting a particular confidence level. So these are, and Z scores are nothing, they just are standard deviation. So these are the Z scores. Z scores are nothing, they are just the standard deviations. So अगर आपने 1.28 का Z score लिया तो you are 80% sure about something which is happening. अगर आपने 1.65, मतलब इस पुराने एग्जाम्पल में what we had done is, एक मिनट क्लियर कर देता हूं, ये जो पुराना एग्जाम्पल है इसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था. So this is one standard deviation which we have taken on both sides. But here what we are taking is 1.28 standard deviation. मतलब 1 से थोड़ा और ज़्यादा. So when we take 1.28 standard deviation, we can get a 80% confidence interval. When we take a 1.65% standard deviation, we get a 90% confidence interval. When we take a 1.96% standard deviation, हमने कितना लिया था, टू स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था, तो वो आ गया था 95.8. But for taking a 95%, we have to take only 1.96 standard deviation on both sides. For getting a 98%, we take 2.33% standard deviation on both sides. For getting a 99% accuracy, we do a 2.58% or 2.58 standard deviation on both sides. And for getting a 99.98%, we take 3 standard deviations on both sides. जैसे देखिए 99.98%, we have come to 3 standard deviations on both sides. So this is how the confidence interval works. Confidence interval is nothing but the number of standard deviations you take on both sides. Confidence intervals is nothing but the number of standard deviations you take on both sides. When you take more data, your confidence will increase. तो इसमें जैसे मुझे किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारी मोती की फैक्ट्री है, अब तुम बताओ कि मैं कोई भी मोती खोलूं तो कितना चांस है कि वो 25 ग्राम का रहे. तो 25 ग्राम का मोती खोलने के लिए वी हैव टू सी हियर 25 ग्राम कम समवेयर हियर, यहां पर आ जाता है बिटवीन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन. सो 25 ग्राम यहां पर आ जाएगा. So that means we have 2 standard deviations on both sides confidence. So we have a confidence of 95.4% कि अगर तुमने 100 खोले तो 95% चांसेस है कि वो 25 ग्राम का आ जाएगा. अच्छा, कितना चांस है कि वो 30 ग्राम का या 32 ग्राम का आ जाएगा? सो हियर द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन. So when 1 standard deviation of both sides 32 grams means we have, अगर आपने 100 खोले तो 68% चांसेस है कि आपको एक आधा मिल जाएगा, जो या उसमें से जो 68 हैं वो अबाउट 32 ग्राम्स आपको मिल सकते हैं. सो दिस इज द फंक्शन और दिस इज द बेनिफिट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल. So what is confidence interval used as? It tells you the probability of prediction. जैसे हमने अभी देखा कि मुझे कोई पूछ रहा है कि 32 ग्राम का मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं बोलता हूँ वो 32 ग्राम मिलने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 68% है. अगर आप 100 खोलोगे तो 68 आपको 32 ग्राम्स के ऊपर मिलेंगे. इट हेल्प्स यू कैलकुलेट द रेंज ऑफ मीन ऑफ पॉपुलेशन. मतलब क्या है कि बाकी कितने मिलेंगे. अगर एवरेज हमारा 40 ग्राम है तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन 7 ग्राम है, तो देर आर चांसेस दैट द एक्चुअल रेंज विल बी प्लस और माइनस 7 ग्राम्स. एक्चुअल मीन ऑफ द पॉपुलेशन विल बी प्लस और माइनस 7 ग्राम. मतलब मैंने जो 1000 खोल के देखे उसमें 40 ग्राम का एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाल लिया उस 1000 का, तो नेक्स्ट टाइम मैं जो खोलूंगा उस 1000 में
I have a 65% confidence that 65% of those 1000 will be 40 plus or minus 7, या फिर 95% of chance that it will be 40 plus or minus 14. तो वैसे ही जैसे हम 19-20 बोलते हैं ना, तो वैसे ही वी हैव अ रेंज ऑफ मीन एंड इट हेल्प्स यू टेक द डिसीजंस. अब यहाँ पर मैंने एक आंसर ये किया है, मतलब एक सम किया है कि आपके पास कोई आदमी आता है और वो आपको बोलता है कि मुझे 38 ग्राम के पर्ल्स चाहिए और मुझे 300 चाहिए. आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ये मुझे आज बताना. आपने तो वो ऑयस्टर जो है वो आज ही लगाए हैं, वो 6 महीने बाद खुलने वाले हैं. लेकिन वो बोलता है, वो एडवांस में ऑर्डर देने आया है आपको कि मुझे 338 ग्राम के पर्ल्स चाहिए. वेदर यू कैन गिव और वेदर यू कैन नॉट गिव, यू हैव टू टेल मी. अगर आप हाँ बोलोगे तो मैं आज ऑर्डर बुक कर दूंगा, भले आप मुझे 6 महीने बाद दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. सो यू हैव टू हैव सम डेटा, you have to have some data for understanding whether you can give him 300 pearls of 38 grams. ठीक है. सो यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमको हेल्प करता है. तो आपने क्या किया, पुराने 100 पर्ल्स का डेटा ले लिया और आपने कैलकुलेट किया कि यार इसका तो एवरेज ही 38 ग्राम है, एवरेज 38 ग्राम है और ये मेरे से 38 ग्राम 300 मांग रहा है. तो अगर ये एवरेज 38 ग्राम है तो आई वॉन्ट टू नो वेदर ये 38 ग्राम के 300 पर्ल मुझे आज के 1000 पर्ल में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. तो मैंने क्या किया, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी. आई वॉन्ट अ 95% कॉन्फिडेंस दैट आई विल बी एबल टू फुलफिल हिज ऑर्डर. और मुझे पता है कि मेरा जो 100 का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 ग्राम है. ऑफ कोर्स ये स्लाइड जो है ये सिखाने के लिए है. दिस यू विल नॉट गेट एज अ सम इन द एग्जाम. आपको एग्जाम में ये सम करके नहीं आएगा, बट ये समझना जरूरी है. तो आपको पता है कि आपने जो 100 पर्ल्स का स्टडी किया, उस 100 पर्ल्स के स्टडी में, सॉरी, उस 100 पर्ल्स के स्टडी में ये मेरा आ गया, मेरा माउस कहीं भाग गया था. तो उस 100 पर्ल्स के स्टडी में यू नो दैट the average was 38 and the standard deviation was 1 gram. So the formula goes as standard deviation into z. Z is the confidence interval. So into z upon the square root of n. तो standard deviation क्या है, 1 है. Confidence interval was 1.96. Square root of 100 was 10. So 0.196 is the confidence interval which we get. तो इसका मतलब 95% मेरे जो आएंगे, जो मेरे 95% आएंगे, they will be either 38 plus 0.196 और 38 minus 0.196. अभी मुझे तो उसे 38 देने हैं. तो 95% मतलब 100 में से 95 0.196 बड़े होंगे 38 से. तो नाउ वी हैव 1000 pearls, 950 will be 38 plus 0.196, 950 or minus 0.196, which means that 475, इसका आधा, will be on the plus side of 38 and 475 will be on the minus side of 38. तो उसको तो 300 ही चाहिए, तो 300 ही चाहिए, तो हम 475 में से 300 आराम से दे सकते हैं. इसीलिए हम उसका ऑर्डर जो है वो ले सकते हैं बिना कोई रिस्क के. सो दिस इज हाउ स्टैटिस्टिक हेल्प्स यू इन डेली प्रैक्टिस. when you know the confidence interval you can